Happy morning, my dear students. Hope you all are doing well. Are you? Yes, ma'am. Alright. Today we are going to see what is the story all about. Story number 12. A lesson in life from a beggar. From Sudha Murthy's Wise and Otherwise for our semester number 4. You have already listened to the story reading yesterday. Have you? Yes, ma'am. Have you understood anything? Maybe the outline of the story, the central thought in the story. Have you understood anything? A lesson in life from a beggar. I have given you some important questions which will make you understand, comprehend important aspects of this lesson. Have you tried to answer them? Have you understood who is Meena? Who is the beggar? How Sudha Murthy ji meets Meena? How was Meena before she met with a beggar? What is that incident that happened and changed Meena's life throughout? How Meena was pessimistic, utterly negative personality before she meets. And then the incident of a rainy day changes her life attitude towards looking at life and also looking at people, considering about people who may not be so well-to-do, but they can be well enough to think well, positive and be happier. So, shall we start? Okay. Meena is a good friend of mine. सुधा मूर्ति जी की फ्रेंड है जो इस स्टोरी का सेंट्रल कैरेक्टर है मीना. She is an LIC officer earning a good salary, but there was always something strange about her. वो एक अच्छी खासी नौकरी करने वाली लेडी थी, लेकिन कुछ ना कुछ उसके साथ थोड़ा सा सुधा मूर्ति को लगता था कुछ तो प्रॉब्लम है. Why? She was forever unhappy. वो हमेशा ही दुखी रहती थी. Whenever I met her, I would start to feel depressed. सुधा मूर्ति जी का एक्सपीरियंस क्या है? मैं जब भी उसको मिलती थी, मैं खुद भी डिप्रेस्ड महसूस करती थी. मुझे भी बहुत दुखी सा महसूस होने लगता था. Have you realized something like that? कुछ लोगों के साथ आप हो तो आपको खुशी महसूस होती है, वो आपको भी खुश करते हैं, खुद भी खुश रहते हैं. लेकिन कुछ लोग खुद भी दुखी होते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं. कुछ तो बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिसके लिए रोना कोई किसी के लिए भी बहुत आसान है. तबीयत ठीक नहीं है, दिन अच्छा नहीं है, बारिश हो रही है, फिर पढ़ाई नहीं हुई, नोट्स गुम हो गए, एनीथिंग, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आपको इंसल्टिंग लगा, एनीथिंग, लेट हो गया, कुछ तो चीज़ें बिगड़ गई, रेसिपी खराब हो गया, आपको जल्दी से टाइम पे कुछ मिला नहीं जो चाहिए था, आपका प्लानिंग कहीं पे बिगड़ गया. एवरीथिंग कैन बी द रीजन टू बी अनहैप्पी, बट देयर इज ओनली वन रीजन टू बी हैप्पी. दैट इज व्हाट? टू सिलेक्ट हैप्पीनेस. Whatever is the situation, however is the person and the scenario, I need to be happy. So acceptance, right, and right thinking towards the incident and the person will make you to feel that happiness. This is what the basic lesson into this story that we need to see. Whenever I met her, I would start to feel depressed. It was as though her gloom and cynicism had a way of spreading to others. उसका इतना दुखी थॉट्स करने का तरीका दूसरों को भी दुखी कर देता था. She never had anything positive to say on any subject or about any person. Any subject you can look at either in a positive way or a negative way. Choice is yours. Take any single person, maybe from your family, your class, your teaching fraternity, your society, your neighbors, your relatives, any person can be looked at with a positive side and a negative side. It's all up to us what we focus and we start feeling the similar way. कोई भी इंसान कोई भी चीज़ों के बारे में हम पॉजिटिवली सोचेंगे तभी पॉजिटिव हमें ज़्यादा चीज़ें दिखाई देगी. यहाँ पे ऐसा था. She never had anything positive to say on any subject or about any person. Meena always used to say negative about people and things, whatever we share with her. So this is Sudha Murthy's experience. Have you realized? पहले की मीना ऐसी थी, हमेशा दुखी थी. उसके साथ जो भी कोई होगा उसको भी दुखी करने की काबिलियत उसमें थी. सुधा मूर्ति को खुद को भी बहुत ज़्यादा
डिप्रेस्ड लगता था जब भी उनके साथ मिलते थे। ठीक है, लोगों के बारे में, चीज़ों के बारे में, घटनाओं के बारे में वो हमेशा नेगेटिवली सोचते थे। दिस इज द बिगिनिंग पैराग्राफ। नाउ for instance, I might say to her, Meena, did you know Rakesh has come first in the school? Meena's immediate response would be to belittle the achievement. Naturally, his father is a school teacher, she would say. For example दिया है, सुधामूर्ति जी बताते हैं, अगर उसको बताती हूँ कि मीना, did you know Rakesh has come first in his school? राकेश का पहला नंबर आया है, पहला रैंक है उसके स्कूल में, तो उसके ऊपर मीना क्या बोलेगी? Normally, what would any person should do in this scenario? Appreciate. Wow, that's great. Congratulations. He might have definitely worked hard and he deserves it. This way, these compliments are naturally accepted. But what happens about Meena? Meena would think in a pessimistic or negative way and would respond saying, naturally, his father is a school teacher. उसमें क्या हुआ? उसके फादर तो स्कूल टीचर है, वही उसके टीचर है, उसको पढ़ाते हैं, उन्होंने पेपर करेक्ट किए होंगे, ये तो उसको पहले बताया गया होगा, वॉट एवर, तो वो फर्स्ट आया तो उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, तो नेचुरल था, ये तो होना ही था। सो दिस इज लाइक belittling anybody's achievement। तो किसी ने कुछ अचीव किया है तो उसको ज्यादा वो अच्छे तरीके से नहीं देखते थे, कुछ ना कुछ उसमें कमियां निकाल के उसका अचीवमेंट कम करते थे। दैट वाज हर नेचर। Whose nature? Meena's। Now, if I say one more example, सुधामूर्ति में देते हैं, if I say Meena, Shweta is a very beautiful girl, isn't she? Meena would be pessimistic। अगर दूसरा एग्जाम्पल उनको दे दें, अगर सुधा जी उनको ऐसे बोल रहे कि मीना, श्वेता बहुत सुंदर लड़की है, नहीं है क्या वो? आपको क्या लगता है? ऐसा अगर पूछे तो when a pony is young, he looks handsome. It is age that matters. Wait for some time. Shweta will be uglier than anyone you know. तो यहाँ पे how to not respond it positively is the right way। मीना ये बताएगी, अच्छा श्वेता बहुत सुंदर लगती है आपको, उसमें कौन सी बड़ी बात है? जब कोई जवान है तो हर कोई अच्छा ही दिखता है। When a pony is young, he looks handsome, है ना? वो बोलते हैं कि गधा भी है, अगर वो भी उसके यंग में तो भी बहुत खूबसूरत दिखेगा, हैंडसम दिखेगा। When the pony is young, he is handsome। तो उसमें कुछ बड़ी बात नहीं, she is young, she has to be beautiful, nothing great। It is great that matters, it is age that matters। वो तो अपने एज की, उम्र के साथ जुड़ी हुई बातें, अपने यंग एज में हर कोई अच्छा दिखता है। वेट फॉर सम टाइम, कुछ दिन रुको। आप बोल रहे हैं ना श्वेता बहुत खूबसूरत दिखती है, श्वेता विल बी अगलियर देन एनीवन यू नो। जैसे वो बुढ़ी हो जाएगी, एज आ जाएगा, उम्र बढ़ती जाएगी, वैसे वो बहुत ज्यादा बदसूरत दिखने लगेगी। These are her comments। You can understand how pessimist a person can be। Meena, it's a beautiful day। तीसरा एग्जाम्पल सुधामूर्ति जी अगर बताते हैं, मीना, it's a beautiful day, let's go for a walk। मीना, कितना अच्छा दिन है, इतना सुहाना दिन है, चलो कहीं टहलने को निकलते हैं। What would she reply? What would you reply in this? If somebody says you, wow, such a beautiful day, golden sunlight, let's go for a walk for 5-10 minutes, let's go for some coffee, tea, let's go to a friend's house। What would you say in general? You would have loved to join because somebody is looking at the positive aspect of nature and the day, and somebody is going to add that happiness। Okay, doing something, action is everything, there is no happiness without action। So doing something, making the best of what you feel is already good, definitely adds to its betterment। So now here, what will be the reply when Sudhaji says, Meena, it's a beautiful day, let's go for a walk। No, the sun is too hot and I get tired if I walk too much। Besides, who says walking is good for health? There is no proof। So मीना जी ने इनकी बात को कैसे टाल दिया है, देखो वो बोल रहे हैं कि चलो बाहर टहल के आते हैं, कितना सुंदर दिन है। तो मीना जी बोल रहे हैं, नहीं, इतना सूरज तेज है, बहुत ज्यादा गर्मी है, धूप है, आई गेट टायर्ड, मैं थक जाऊंगी। इफ आई वॉक टू मच, मैं बहुत ज्यादा चलती हूँ तो मैं बहुत ज्यादा थक जाऊंगी। बिसाइड्स, और उसके अलावा, हु सेज वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ? किसने बोला है वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ? चलने फिरने से हेल्थ अच्छी रहती है, ये किसने बोला है? देयर इज नो प्रूफ, इसका कोई सबूत नहीं है। दिस इज द
स्ट्रॉन्गेस्ट पेसिमिस्ट एवर, कुछ भी बात में वो नेगेटिव ही बोलेंगे, नेगेटिव रिस्पॉन्ड करेंगे, तो अपने आप जो लोग उनसे जुड़े हैं वो भी हैप्पी नहीं रह पाएंगे, बराबर। So these were three examples that Sudhaji has put in the beginning, and now let us see what is that incident that happens. Maybe after some years, जैसे आपके फ्रेंड्स हैं, अभी आप एक क्लास में बैठे हो, कुछ सालों बाद, बहुत साल बीच में जाएंगे, शायद से कोई किसी को नहीं मिल पाएगा, लेकिन अगर 20 साल, 30 साल, 40 साल बाद अगर मिलते हो तो आप में बहुत सारे बदलाव आपको दिखेंगे। जो आज जैसे आप हो वैसे उस समय पे नहीं रहेंगे, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ योर लुक्स एंड एज, आई एम टॉकिंग अबाउट योर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। शायद से अभी बहुत बार ऐसा होता है कि यू डोंट टॉक टू ईच अदर, you don't feel like what to talk and not, but at that time there will be so many things that you would love to share. फिर आप बोलोगे अरे हाँ हमें वो सविता मैडम पढ़ाते थे इंग्लिश में, हमें उन्होंने ये लेसन पढ़ाया था, कुछ ना कुछ ऐसे हो सकता है। So here Meena and Sudhaji, when they meet after a long time, there is a drastic change in Meena's nature. So let's see what was that change and who brought it. Was that a beggar? कोई एक भिखारी जो मीना को कुछ न कुछ सिखा के गया एक इंसिडेंट से, और मीना फिर बहुत ज़्यादा बदलाव के साथ एक अच्छी पर्सनालिटी में हमें सुधाजी के साथ मिली और हमें भी अच्छा लगता है, इतना चेंजेस उसमें हो गए। सुधाजी इज ऑल्सो हैप्पी टू शेयर, एंड दैट्स व्हाई द लेसन इज। सो देन लेट्स कंटिन्यू। दैट वाज मीना। शी स्टेड अलोन इन एन अपार्टमेंट एज हर पेरेंट्स लिव्ड इन दिल्ली। उसके पेरेंट्स दिल्ली में रहते थे और एक वो अपार्टमेंट में रहती थी। शी वॉज एन ओनली चाइल्ड एंड हैड द हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। वो अकेली बेटी थी उसके माता पिता की, और उसकी आदत थी हर एक चीज़ों में अपनी कंप्लेंट्स करे और लोगों के बारे में भी। नेचुरली शी वॉज इन वेरी प्लेजेंट कंपनी एंड नोबडी वांटेड टू विजिट हर। तो कोई उसको लाइक नहीं करता था, उसके साथ में रहने वाला कोई भी खुश नहीं रहता था, तो लोगों को नहीं लगता था कि उसके साथ जाके मिले बात करें। Then one day, एक दिन क्या हुआ, Meena was transferred to Bombay and we all sort forgot about her. एक दिन ऐसे हो गया कि मीना की ट्रांसफर बॉम्बे हो गई, उस टाइम का बॉम्बे, now it is Mumbai. So now, earlier they were working together, not in Mumbai, but then Meena got transferred to Mumbai and Sudhaji is already working, maybe at other station, okay, maybe southern Indian parts. And then when Sudhamurti ji comes to Mumbai for one work, she meets Meena in Mumbai. Okay, so this story happens right in this Mumbai. What is that? तो पहले साथ में काम करते थे, फिर उसकी ट्रांसफर हो गई मीना की मुंबई में, और वो मीना को भूल गए। ठीक है, ट्रांसफर हो जाते हैं लोग तो हम उनको भूल जाते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें याद में रहती है, लेकिन बहुत टाइम बीच में गया और एक दिन फिर से मीना उनको मिली। लेकिन क्या वो मीना पहले जैसी थी? बिल्कुल भी नहीं। How is that? Many years later, I found myself caught in the rain at Bombay's Flora Fountain. It's a rainy day, बारिश हो रही थी, और मुंबई के फ्लोरा फाउंटेन, have you seen that? The important place in the fort, it is known as Flora Fountain. वहाँ पे फाउंटेन जैसा एक कंस्ट्रक्शन है, which is made in the reigns of British Empire, है ना। बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं, जब आप जाओगे सदर्न मुंबई, प्रॉपर मुंबई में CST चर्च गेट एरिया में आपको दिखेगा, जैसे एशियाटिक लाइब्रेरी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का भी बिल्डिंग है। Those buildings are specifically designed in such a way so that it has that empire touch, okay? Some Greek sculpture के जैसे वो बिल्डिंग्स बनाए गए हैं, और वहाँ पे एक प्लेस है फ्लोरा फाउंटेन। It was pouring and I didn't have an umbrella. बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और मेरे पास छाता नहीं था। सुधामूर्ति जी बोल रहे हैं छाता नहीं था। I was standing near Akbar Alleys, a popular department store, waiting for the rain to subside. तो एक छोटा सा वहाँ पे डिपार्टमेंट स्टोर है जिसका नाम है अकबर एलिस। वहाँ पे सुधामूर्ति जी खड़े थे और देख रहे थे कि बारिश कब थम जाएगी। बारिश थम जाएगी तो उनका जो कुछ काम है उसके लिए निकल जाएंगे, भीगने से तो काम नहीं होगा, ऑफिशियल वर्क के लिए आए हैं वो। Suddenly I spotted Meena. My first reaction was to run, even in the pouring rain. और मुझे वहाँ पे मीना नजर आई। मुझे लगा मैं ऐसे
पड़ती हुई बारिश में मैं भाग जाओ, क्योंकि ये तो पेसिमिस्टिक है, कुछ ना कुछ निगेटिव बता देगी, मुझे भी दुखी कर देगी। और बारिश हो रही, फिर भी हम इससे छुटकारा पाते हैं, चलो भाग जाते हैं, ऐसे हमको एक समझने लगा। आई वॉज एंशियस टू अवॉइड बीइंग सीन बाय हर, मुझे लगता था कि वो मेरी तरफ ना देखे। हम ऐसा कभी कभी करते हैं ना, when we want to avoid people if they are going to criticize you, make you unhappy, and like if you're not going to feel good to have communication with that person, you try to hide yourself, you feel like मुझे ना देखे तो भी ठीक है, कैसे करके इनके साथ इंटरेक्शन ना हो तो ठीक है। तो अभी ऐसा हम लोग सोच ही रहे थे तब तक। I was anxious to avoid being seen by her, having to listen to her never-ending complaints. उनके कभी ना खत्म होने वाले कंप्लेंट्स मुझे सुनने नहीं थे, और मैं चाहती थी कि वो मुझे ना देखे। However, I couldn't escape, लेकिन मैं उससे छुटकारा मिला नहीं पाई। I couldn't escape, मैं नहीं भाग पाई उस सिचुएशन से। She had already seen me and caught hold of my hand warmly. उसने मुझे देखा था और मेरा बहुत ही प्यार से हाथ भी पकड़ के रखा था। Once more, she was very cheerful. और अभी क्या पूछते हो, वो तो बहुत खुश दिखाई दे रही थी। She was very cheerful. Hey, I'm really excited. It's nice to meet old friends. What are you doing here? सुधामूर्ति जी को मीना बोल रही है कि Hey, I'm really excited. मुझे कितनी खुशी हो रही है। It's nice to meet old friends. पुराने दोस्त मिलते तो कितना अच्छा लगता है। What are you doing here? आप यहाँ पे कैसे? सुधामूर्ति जी का ट्रांसफर तो वहाँ उस समय मुंबई में नहीं था। She was out of Mumbai working. And then she meets Sudhaji. She asks, what are you doing here? आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? I explained that I was in Bombay on official work. तो सुधामूर्ति जी उनको बोलते हैं कि मैं मुंबई में कुछ ऑफिशियल वर्क से, काम के सिलसिले में आई हूँ। In the first part, we have seen that Meena and Sudhaji had always experienced a meeting which always ended up into a pessimist experience of a kind. Now here, when in Mumbai, in a pouring rain, when Sudhaji meets Meena, and Meena is a different person. She is so much excited to see Sudhaji and she expresses, Hey, I'm really excited. It's nice to meet old friends. What are you doing here? मुझे कितनी अच्छा लग रहा है, कितनी खुशी हो रही है कि पुराने दोस्त मिलते हैं। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप यहाँ पे कैसे? सुधामूर्ति जी को उन्होंने ये क्वेश्चन किया। I explained that I was in Bombay on official work. Sudhaji said, there is some official work and I'm here to do that. Then stay with me tonight, said she. Let's chat. Do you know that old wine, old friends and memories are precious and rare? Meena is so much optimistic, and what is she expressing? She's wishing that Sudhaji should stay along with her in Mumbai at least for a night. She wanted to talk to her, and she just wanted to also experience that, wow, it's nice to meet one of the old friends. Old wine, old friends and old memories are precious and rare. So she's understood now that the days bygone would never come back. So you have to really take care of your friends, old ones more. And it is a great saying that old wine, old friends and old memories are rare. फिर से मिलते नहीं हैं, तो उनको जतन करके संभाल के रखना जरूरी है। वो बहुत ज़्यादा प्रेशियस होते हैं, बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं। I couldn't believe it. सुधामूर्ति जी को बहुत ही अचरज लगा। वो बोल रहे, मेरा विश्वास ही नहीं हो रहा था, इतना पॉजिटिविटी मीना में, जो बहुत ही ज़्यादा पेसिमिस्ट थी पहले। I couldn't believe it. Was this really Meena? क्या ये यही मीना है? I pinched myself hard to be sure it wasn't a dream. She pinched herself hard. खुद को ऐसे चिमटी लेते हैं ना हम, अरे क्या सच में है? क्या मैं सच में देख रही हूँ, मेरा ख्वाब तो नहीं है? So she really felt it. ये यही मीना है क्या? मुझे तसल्ली करने दो। That it wasn't a dream, but it was a reality. Well, it wasn't a dream. वो तो ख्वाब नहीं था। Meena was standing there, right in front of me, squeezing my hand, smiling, and yes, she did look happy. वो तो मीना ही थी, मेरे सामने खड़ी थी और स्माइल कर रही थी और बहुत खुश दिखाई दे रही थी।
और मेरा हाथ उसने पकड़ के रखा था और बहुत ही प्यार से वो बोल रही थी कि मुझे बहुत खुशी हो गई है, आप मेरे साथ थोड़ा समय के लिए रुकना चाहिए। In the 3 years she had been in Bangalore, तो बेंगलोर में उनकी दोस्ती हुई थी, वो कलीग्स थे 3 साल। I had never once seen her smiling like that। वो 3 सालों में जब वो एक ऑफिस में काम करते थे, कभी भी उसको हंसते हुए उन्होंने नहीं देखा था। Never seen her smiling like that। इतने अच्छे से खुशी में उन्होंने उसको नहीं देखा था। A few strands of grey in her hair reminded me that years had passed by। उसके कुछ बाल सफेद भी हो गए थे, तो इससे मुझे अंदाजा हो रहा था कि यस, बीच में बहुत सारे साल गुजर गए हैं, अभी बुढ़ापा आने लगा है। There were a few wrinkles in her face, but the truth was that she looked more attractive than ever before। उसके चेहरे पे एज की वजह से थोड़ी थोड़ी झुर्रियाँ, wrinkles भी आ रही थी, लेकिन वो पहले से बहुत ज़्यादा अभी अट्रैक्टिव लग रही थी, ताकि वो खुश थी। Right or not? What do you think? What makes a person attractive, more beautiful? Being happy. A smiling face. You know, we always have that important quotations that we all love and we try to practice also. What? Your smile is the best ornament that you have to put on. है ना? बहुत सारे हम खुद को अडॉर्न करने में विश्वास करते हैं, अच्छा दिखना है हर किसी को, है ना? अच्छे अच्छे एक्सेसरीज रहते हैं हमारे पास, लेकिन अगर हम खुश नहीं हैं, अगर हम सच्चे दिल से स्माइल नहीं कर पा रहे हैं, खुशी महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो हम अच्छे नहीं लगते, ताकि हम कितना भी मेकअप करें, खुद को सजा के रखें। सो द बेस्ट ऑर्नामेंट इज योर स्माइल। आप खुश हो, भले आपके पास कुछ बहुत सारी चीज़ें ना हो, फिर भी आपकी खुशी आपका सबसे बड़ा गहना होता है। तो अभी यहाँ पे सुधा मूर्ति जी बोल रहे हैं कि तब के समय में, हालांकि वो तब ज़्यादा यंग थी, अभी एज हो गया, फिर भी उस समय से अभी वो ज़्यादा अच्छी दिख रही थी, अट्रैक्टिव लग रही थी, ताकि वो हैप्पी थी। सो हैप्पीनेस इज वन इम्पॉर्टेंट एसेंस दैट शी फाइंड्स इन करंट मीना। Finally, I managed to tell her, "No, Meena, I can't stay with you tonight. I have to attend a dinner. Give me your card and I'll keep in touch with you, I promise." तो सुधा मूर्ति जी उनको बोलते हैं कि नहीं मीना, मैं आज तो आपके साथ नहीं रुक सकती, क्योंकि मुझे एक डिनर है और वहाँ पे ऑफ कोर्स ऑफिशियल मीटिंग का डिनर है। गिव मी योर कार्ड एंड आई कीप इन टच विथ यू, आई प्रॉमिस। आपका कार्ड मुझे दे दो, मैं आपके कॉन्टैक्ट में रहूँगी, ठीक है? दिस इज द कन्वर्सेशन। फॉर अ मोमेंट मीना लुक्ड डिसअपॉइंटेड। सुधा जी ने मना कर दिया तो मीना थोड़ा नाखुश से दिखाई दी। लेट्स गो एंड हैव टी एट लीस्ट, शी इंसिस्टेड। तो वहाँ पे वो रुकी नहीं। नेक्स्ट व्हाट डिड शी thought? She thought of at least going out and have tea at least। कोई बात नहीं, आप नहीं रुक सकते तो ठीक है, आपका कुछ काम होगा, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं आराम से, लेकिन चलो चाय तो साथ में पीते हैं। अभी बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, छाता दोनों के पास नहीं है, ऐसा मान के चलते कि मीना के पास भी नहीं है, सुधा मूर्ति जी के पास में तो था ही नहीं, और अभी चाय पीने की है मैडम को। अभी सुधा मूर्ति जी क्या सोचते हैं, देखो। For a moment Meena looked disappointed. Let's go and have tea at least, she insisted. But Meena, it's boring. सुधा जी क्या बोलने लगे, मीना बहुत तेज बारिश हो रही है, और कैसे आप बोल रहे हो जाके चाय पीते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश है, कैसे जाएंगे? So what? We will buy ourselves an umbrella and then go to the Grand Hotel, she said. So there is a solution. You believe, if you want to do something, there is always a solution, provided you think creatively, provided you think willingly. If you want to do something, you will get the options, you will get the solutions. तो ना मीना को कुछ भी करके जाना है, सुधा मूर्ति के साथ थोड़ा बैठना है, गप्पे मारना है, पुरानी यादें ताज़ा करनी है, कुछ खुशी के पल बटोरने हैं। और वो बोल रहे हैं कि चलो हम जाते हैं, कोई बात नहीं, हम छाता खरीदते हैं हमारे लिए, और छाता लेके चलते चलते जाएंगे ग्रैंड होटल में, जाके चाय पिएंगे, ठीक है? Now what does सुधा मूर्ति think? What does she think? We won't get a taxi in this train, I grumbled. अभी सुधा मूर्ति जी इनकार कर रहे हैं। सुधा मूर्ति बोल रही थी, We won't get a taxi in this train, I grumbled. हमें टैक्सी में नहीं मिलेगा, मान के चलो चल के जाते हैं छाते से, भीगेंगे नहीं, टैक्सी ढूंढेंगे, टैक्सी से जाएंगे। तो फिर टैक्सी इज एन ऑप्शन फॉर होम, सुधा मूर्ति जी, क्योंकि शी इज ऑलरेडी जस्ट ऑन अ career visit to Mumbai. But the things are different with Meena. She is a daily visitor to that place, that's possible. So she is like a local person there. So she knows how to deal with things casually.
एंड सुधाजी इज थिंकिंग कि टैक्सी तो नहीं मिलेगा भाई, इधर से इतनी बारिश हो रही है, टैक्सी नहीं मिलेगा, क्यों जाने का है, नहीं जाएंगे, सो व्हाट वी विल वॉक। एंड मीना जी बोलते कि तो क्या हुआ, चलते चलते जाएंगे। आई वॉज वेरी सरप्राइज, मुझे बहुत अचरज लगा। दिस वॉजंट द सेम मीना आई हैड नोन, ये वो मीना नहीं थी जो मुझे पता थी 3 साल पहले। टुडे शी सीम्ड रेडी टू मेक एनी नंबर ऑफ एडजस्टमेंट्स। आज वो कुछ चीज़ों के लिए बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने को तैयार थी, एक छोटी सी खुशी के लिए। वो खुशी भी क्या थी, सुधा मूर्ति जी को खुशी देने के लिए, साथ में एक कप चाय पीने के लिए। वी रीच द ग्रैंड होटल ड्रेंच्ड, तो हम भीगते भीगते ही ग्रैंड होटल में पहुंचे। अम्ब्रेला के बारे में कुछ बताया नहीं है, शायद से मिला होगा, नहीं मिला होगा तो भी मुंबई के बारिश में पता है अम्ब्रेला होने का मतलब ना होने के जैसा ही है। We actually get drenched and both of them, if they're sharing the same, गए काम से। So now, by then the only thought in my mind was to find out who or what had brought about such a change in the pessimistic Meena I had known. I was very curious. तो अब तक मैं इस थॉट्स पे पहुंची थी कि इतना बदलाव मीना में किस बात से, किस बंदे ने लेके आया है। शी वॉज ऑल क्यूरियस, इतने सारे चेंजेस किसने किए इसमें, उनको बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी इस बातों के लिए, जानने के लिए, वो और पूछते भी है। शी इज़ अ फ्रेंड टू हर। टेल मी मीना, इज देयर अ प्रिंस चार्मिंग हु हैज मैनेज्ड टू चेंज यू सो? फ्रेंड्स, वी ऑलवेज ट्राई टू ask each other if you are in love, who has changed you, right? What is the reason behind it? We try to do that in a way of teasing, but here she is seriously asking, इतना बदलाव कैसे हो गया है? कोई इसके पीछे आपका कोई प्रिंस चार्मिंग है? Do you have any boyfriend or somebody that who has changed you a lot? Meena was surprised by my question. मीना को अचरज लगा ऐसे क्वेश्चन से। नो, देयर इजंट एनीवन लाइक दैट, शी सेड। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, देयर इज नो एनी प्रिंस चार्मिंग। किसी लड़के के लिए, बॉयफ्रेंड के लिए मैं ऐसे चेंज हो गई हूँ, खुश रह रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। देन व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ योर एनर्जी? आई आस्क्ड, लाइक तेंदुलकर डज इन द एड। यू नो द फेमस क्वेश्चन ऑफ Sachin Tendulkar, people asking him, what's the secret of your energy? And Sachin Tendulkar asking, Boost is the secret of my energy. And that is the marketing strategy of Boost. Now here, Meena ji is asked by Sudha ji, what is the secret of your energy? How you can be so happy, energetic? Tell us the secret. She smiled, and then what does she answer? E is nothing but the title of our story. A baker has changed my life. A baker has changed my life. Now, what that the situation can be? He is the next part. किसी एक भिखारी के साथ जब उनका बातचीत हुआ, कुछ ऐसा इंसिडेंट, उसकी वजह से शायद से लाइफ का फिलॉसफी उन्होंने सीख लिया और पूरा अपना एटीट्यूड बदल दिया। I was absolutely dumbfounded and she could see it. मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, पूरा क्वेश्चन मार्क था चेहरे पे, कुछ भी मुझे समझ में नहीं आया। कोई एक भिखारी किसी को इतना कैसे बदलने को बोल सकता है, इसका इतना इफेक्ट कैसे हो सकता है, वो इंसिडेंट क्या हो सकता है, ऐसे बहुत सारे सवाल उनके चेहरे पे दिखाई दे रहे थे। ऑफ कोर्स नेक्स्ट जो कम्युनिकेशन होगा सुधा जी में और मीना जी में, वो है इम्पॉर्टेंट क्रक्स, इम्पॉर्टेंट थॉट ऑफ द होल स्टोरी। नाउ पे अटेंशन मोर। Yes, a beggar, she repeated as if to reassure me. She went on to explain. He was old and used to stay in front of my house with his 5-year-old granddaughter. As you know, I was a chronic pessimist. I used to give out leftovers to this beggar every day. I never spoke to him, nor did he speak to me. Incident बता रहे हैं, ठीक है? मीना जी बता रहे हैं कि यस अ बेगर, हाँ, एक भिखारी ने ही मेरी जिंदगी बदल दी है, मैं खुश रहने लगी हूँ ताकि उनसे मैंने कुछ सीखा है। She went on to explain, he was old, वो बुजुर्ग थे and used to stay in front of my house with his 5-year-old granddaughter. उनकी 5 साल की एक पोती भी थी और वो मेरे घर के सामने ही रहते थे। As you know, I was a chronic pessimist. आपको
आपको तो पता है पहले से मैं बहुत ज़्यादा निराशावादी थी, हमेशा चीज़ों के बारे में भला बुरा कहती थी और चीज़ों की तरफ प्यार से किसी भी नहीं देखती थी, ना सोचती थी। As you know, I was a chronic pessimist. I used to give out leftovers to this beggar every day. मेरे घर में अगर कुछ खाना बचा है, तो बासी खाना है, बचा हुआ खाना है, तो मैं उन भिखारी को मैं दे देती थी। I never spoke to him. मैंने कभी भी उनके साथ बात नहीं किया था। Nor did he speak to me. उन्होंने भी मुझे कभी कुछ खुद से मांगा नहीं था, बात नहीं किया था, ठीक है। But that was a daily routine. जो भी कुछ बचा हुआ है मैं उनको देती थी। उनकी 5 साल की होती थी साथ में, ठीक है, वो बुजुर्ग थे। One monsoon day, again a rainy day. एक दिन ऐसे बारिश के दिन में I looked out of my bedroom window and started cursing the rain. मैंने खिड़की के बाहर देखा, बारिश हो रही थी और मैंने बारिश को ताने मारने शुरू कर दिया। क्यों बारिश हो रही है? हो सकता है मुझे ऑफिस जाना है, नहीं तो लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, इतना बारिश हो, फिर हो सकता है इन सिटीज लाइक मुंबई ट्रेन्स बंद होंगे, रोड्स ब्लॉक होंगे, किसी का कॉलेज है, किसी का ऑफिस है, कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है, वो सब ठप हो जाता है। सो शी इज कर्सिंग। नॉर्मली वी आल्सो डू लाइक दैट। अभी बारिश हो रहा है, मुझे निकलना है कॉलेज के लिए, अभी बारिश को क्यों होना है, 1 घंटे के बाद शुरू हो जाए। दैट डजंट हैपन। सो हियर शी स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग however is the situation, knowing what does this beggar think about. So I don't know why I did that because I wasn't even getting wet. तो मुझे पता नहीं मैं बारिश को क्यों भला बुरा कह रही थी, जबकि मैं तो खुद नहीं भीग रही थी। मैं तो घर में थी, बेडरूम की विंडो से देख रही थी हाँ बारिश हो रही है और उसको मैं ताने दे रही थी। तो गलत था, लेकिन मुझे पता नहीं बिकॉज इट वॉज हर नेचर, ठीक है। बारिश तो जरूरी है, मानते हो ना सब? बारिश नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इट इज द एसेंस ऑफ लाइफ। वाटर वी डू नीड एंड सो नेवर एवर कर्स रेन्स. वी रिक्वायर अप्रिशिएट. ये रे पावसा असंच म्हणायचं असतं. आवर कल्चर हैज टोल्ड अस, टॉट अस टू अप्रिशिएट. बारिश होना कितना जरूरी है. ऑफ कोर्स ओवर पोरिंग रेन से प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन बारिश जरूरी है. We can manage that if somewhere that happens, but not having rains at all is a big issue. We cannot survive without water, can we? No. So we need water and we should appreciate rains. Now here, she's not even getting wet. भीग भी नहीं रही थी, घर में थी, भले अच्छे से देख रही थी, फिर भी बारिश को कर्ज कर रही थी. That day I couldn't give the baker and his granddaughter their daily quota of our leftovers. They went hungry, I'm sure. मीना जी को लगा कि इतनी बारिश हो रही है तो ऑफकोर्स उस बारिश में बाहर जाके खुद से उन्होंने उनको कुछ दिया नहीं, तो लगा कि अभी ये जो है बुजुर्ग भिखारी और उनकी जो ग्रैंडडॉटर है वो तो भूखे रह जाएंगे. मुझे लगता है वो भूखे ही रह गए उस दिन, ठीक है. आई एम श्योर दे वेंट हंग्री. उनको बहुत भूख लगी होगी लेकिन खाने को कुछ नहीं मिला होगा क्योंकि मैंने उनका जो डेली लेफ्टओवर्स का कोटा है वो नहीं दिया ताकि बारिश हो रही थी. However, what I saw from my window surprised me. लेकिन मैंने मेरे विंडो के बाहर देखा तो मुझे बहुत अचरज हुआ. The baker and the young girl were playing on the road because there was no traffic. वो बेगर और उनकी ग्रैंडडॉटर अच्छे से रास्ते में खेल रहे थे ताकि बहुत बारिश था, ट्रैफिक नहीं था. They were playing on the road. They were laughing, clapping and screaming joyously as if they were in paradise. वो एक दूसरे के साथ खेल रहे थे, हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे और बहुत ही आनंद से हैप्पीली, जॉयसली, स्क्रीमिंग, चिल्ला भी रहे थे ऊंची आवाज में, है ना. हम जाते एकदम, अगर मम्मी ने आपको परमिशन दे दी है ना, आप पूछते हो मैं थोड़ा सा जाके बारिश में खेलूं क्या, बचपन थोड़ा सा याद करो. डू रिमेम्बर? बचपन हमेशा जीना है कि नहीं. अभी भी जी सकते हो. पहली बारिश होती है तो हमें अच्छा लगता है, चलो हम जाते हैं थोड़ा सा. और हमें याद है मराठी में अंगारा भिंगारा. आई स्टिल डू दैट once twice when there is rain and it's a gentle rain, then I try to again live my childhood. And you also must be doing the same. And it is also said that the first rains is always good. One should go because it really imbibes and advances your immunity. And of course the happiness of all those drops come directly from the paradise.
from nowhere it is coming, and it is, that's what the nature always loves us, and it comes to us, and when it touches our heads, hands, it is a great joy. So now here this beggar and the granddaughter, when Meena is feeling like they might have not had anything to eat, they would have just remained hungry, but that was not the case. When she looks out of the window, these both of them, they are literally playing, laughing, clapping and screaming joyously and enjoying the rains, because the roads were empty and traffic was not there. I don't know, that day I couldn't give the beggar and his granddaughter their daily quota of our leftovers. They went hungry, I'm sure. However, what I saw from my window surprised me. The beggar and the young girl were playing on the road because there was no traffic. They were laughing, clapping and screaming joyously as if they were in paradise. जैसे कि वो स्वर्ग में है. आप मानते हो स्वर्ग है? कुछ ना कुछ ऐसा आइडियल जगह जिसपे आपको लगता है कि आप बहुत खुश रहोगे. It is here. It is in the moment. We can create our own paradise wherever we are, because it's all about our mindset. Right or not? जिस हालात में आप हो, शायद से उस हालात के लिए भी बहुत सारे लोग तरसते हैं. जब आपका हेल्थ बिगड़ जाता है, आप ठीक से चल नहीं पाते हो, हाँ, ठीक से सांस नहीं ले पाते हो, आप सिर्फ ये चाहते हो कि मुझे किसी भी करके ठीक होना है, बाकी का बाद में देख लेंगे. Do you remember this? That's what. So if currently you are in a good health, if you can listen properly, if you can see properly, if you can breathe properly, walk properly, that's the paradise. And that's what she has learned from this person, that as if they were in the paradise and they were rejoicing, वो बहुत मजे ले रहे थे. Then hunger and rain did not matter. उनके लिए भूख और बारिश मैटर करता ही नहीं था. हम बहुत भूखे हैं, हमें किसी ने खाने को नहीं दिया है और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, ऐसी चीज़ों से उनको कुछ असर नहीं पड़ा. वो ना ही रो रहे थे, ना ही कोशिश कर रहे थे बारिश से बचने से, ना ही किसी को मांग रहे थे हमें खाने को कुछ दो. नहीं, they were very happy. They were enjoying the rain and they were enjoying the total atmosphere of clear roads at that time. They were totally drenched and totally happy. वो पूरा भीग गए थे. नाना पोती जो हो सकता है, नहीं तो दादा पोती, जो कुछ उनका रिलेशन होगा. ओके, जस्ट सेड एज ग्रैंडडॉटर. हो सकता है उनकी बेटी की बेटी हो, नहीं तो बेटे की बेटी हो. तो दोनों जो है पूरा बारिश में भीग रहे हैं, खुश हैं. आई एनवीड देयर जेस्ट फॉर लाइफ. उनकी तरफ देख के मुझे भी थोड़ा सा जेलस फील हो गया, एनवी लगा. मराठीमध्ये ज्याला आपण म्हणतो ना की त्यांचा मला हेवा वाटला. मतलब मैं क्यों ऐसे खुश नहीं रह सकती, मेरे पास तो सब कुछ है, इतना अच्छा घर है, नौकरी है, सब कुछ खाने के लिए है, लेकिन मैं ऐसे बारिश में जाके इतना खुश क्यों नहीं हो पा रही. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड. दिस इज द बिगेस्ट लेसन in the life, that you can be happy with whatever you have or whatsoever that you don't have, because it's just the moment that matters and your mindset to what you look at, right? That scene forced me to look at my own life. वो scene से मुझे ये सीख मिली कि अरे मैं मेरी तरफ, मेरी जिंदगी की तरफ थोड़ा सा झांक लूँ. I realized I had so many comforts. मुझे ये महसूस हुआ कि मेरे पास कितनी comforts है, सेवा सुविधाएं हैं. None of which they had. उनके पास तो वैसा कुछ भी नहीं है. But they had the most important of all assets, one which I lacked. लेकिन उनके पास वो एक important चीज़ थी जो मेरे पास नहीं थी. क्या थी वो? They knew how to be happy with life as it was. जैसा भी हमारा जीवन है, उसमें कैसे खुश रह पाए, ये तरीका जो उनके पास था खुशी ढूंढने का, वो मेरे पास नहीं था. वो उनके पास था जो उन्होंने मुझे सिखा दिया. A lesson in life from a beggar. Here comes important line. They knew how to be happy with life as it was. भले जीवन कैसा भी है, जीवन के किसी भी पड़ाव में आप हो, कुछ चीज़ें आपके पास होगी, नहीं होगी, कुछ ड्रीम्स अब तक पूरे हैं, कुछ बाद में पूरे होंगे, लेकिन
यही मोमेंट में, इसी क्षण में आपको खुश रहना सीखना है। ये बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ा एसेट था वो जो उन दोनों के पास था और मेरे पास नहीं था। I felt ashamed of myself. मुझे मेरे खुद के बारे में बहुत ज़्यादा बुरा लगा। I feel ashamed of myself. I even started to make a list of what I had and what I did not have. मैंने लिस्ट बनाना चालू कर दिया कि मेरे पास क्या है और मेरे पास क्या नहीं। Have you ever seen that SWOT analysis? If you really want to map yourself, क्या आप अभी लाइफ के किस पड़ाव में हो, क्या आपके पास है क्या नहीं है, कौन से SWOT, strength, weakness, opportunities and threats. Strength आपकी मजबूतियाँ, आपकी खुद की, आपकी फैमिली की, आप जिस फेज में हो लाइफ के उसकी क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। स्ट्रेंथ बलस थाने जगह पर मंडो, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जिसके ऊपर पे आप कुछ भी कर सकते हो। W, वीकनेस, कुछ वीकनेस है, हर किसी में वीकनेस है, तो मेरे वीकनेस पर्सनली क्या क्या है उसकी एक लिस्ट आप बना लो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। खुद को समझना बेहद जरूरी है, ठीक है। फिर अपॉर्चुनिटीज, आप क्या क्या कर सकते हो, ऑप्शंस दैट यू कैन टेक ऑन। अपॉर्चुनिटीज, मेरे पास कौन कौन सी अलग अलग चीज़ें हैं जिसमें मैं खुद को आजमा सकती हूँ, आगे बढ़ सकती हूँ। अपॉर्चुनिटीज उसकी भी लिस्ट बना दो। एंड देन थ्रेट्स, कौन कौन से वहाँ पे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें मुझे थ्रेट्स महसूस होगा, डर हो सकता है कि ये मेरे लिए क्या बोल सकते हैं, वार्निंग्स है, अलार्म्स हो सकते हैं, धोखा, डेंजर हो सकता है, अगर ये नहीं मिला तो थ्रेट्स हो सकते हैं। पॉसिबिलिटीज होती है, कुछ चीज़ें हमें नहीं मिली तो क्या होगा, ये मैं नहीं कर पाई तो क्या होगा, वो भी पहले से सोच के रखो तो डर भाग जाता है। क्योंकि लाइफ एक पूरा एक कैलकुलेशन है, कुछ चीज़ें आपके पास है, स्ट्रेंथ्स है, कुछ आपके वीक पॉइंट्स है, वो भी आपको आप नहीं टाल सकते, लेकिन आपको जानना ज़रूरी होता है। फिर मैं क्या क्या कर सकती हूँ, अपॉर्चुनिटीज़, वो भी आपको समझना ज़रूरी है। जब तक आप वो ना देखो तो कुछ भी नहीं कर सकोगे। एंड थ्रेट्स, कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे इस तक पहुँचने में मुझे रोक सकती है, वो भी जानना ज़रूरी है ताकि वो आप कम करो। और अगर नहीं भी हुआ तो भी मेरे पास कुछ दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन होना चाहिए। दिस इज ऑल talked about SWOT analysis. Okay, it's a psychological analysis of knowing yourself better, so that you can plan your dreams and also execute the same. Believing in yourself and giving your best to whatever situations you are placed into. Okay, क्योंकि हर किसी के लाइफ में कुछ कमियाँ खामियाँ जिसे बोल सकते हैं, कुछ प्लस पॉइंट्स नेगेटिव पॉइंट्स होने वाले हैं, इसको सबको लेते हुए हमें आगे जाना है। So now here, it's important thing that you have also learned from today's lesson is to be happy in whatever place you have been placed. I even started to make a list of what I had and what I did not have. I found I had more to be grateful for than most people could imagine. और मैंने लिस्ट बनाना शुरू कर दिया, मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या नहीं है, और मुझे ये महसूस हुआ कि मेरे पास कितनी सारी चीज़ें हैं जिसके लिए मुझे उन चीज़ों को ग्रेटफुल रहना ज़रूरी है। मुझे पता ही नहीं था इतना सब कुछ मेरे पास है, हैव्स में कितने सारे हैं, मेरे पास ये है, वो है, वो है, वो है, सब कुछ है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। और इन सभी चीज़ों के लिए मुझे कृतज्ञता स्थापित करनी है, मुझे ग्रेटिट्यूड महसूस होना ज़रूरी है। That day I decided to change my attitude towards life using the beggar as my role model. See the sentence. That day, उस दिन, I decided, मैंने तय किया, to change my attitude towards life. जीवन के प्रति मेरा दृष्टिकोण बदलने का मैंने साफ तय कर दिया। Using the beggar as my role model. beggar को मैंने मेरा रोल मॉडल बना दिया। बहुत सारे किसी को रोल मॉडल्स मानते हैं, कुछ हीरोज है, हीरोइंस है, सोशल वर्कर्स है, साइंटिस्ट है कि नहीं, कुछ पॉलिटिशियंस है। मान के चलो आपकी खुद की मदर, फादर हो सकता है, somebody from your relatives. We always try to see our role model. Can a beggar be a role model for somebody? Yes. क्योंकि हर किसी के पास से कुछ न कुछ सीखने जैसा हमेशा होता है, वो देखने की नज़र हमें डेवलप करनी है। तो मीना जी हैज़ टेकन आफ्टर दैट beggar as
her role model because he taught her the lesson to be happy. To be happy irrespective of what you have, what you don't have. खुश कैसे रहना है, इसका सबक उस भिखारी ने मीना को दिया था और इसके लिए उन्होंने बोला कि वही भिखारी मेरे लिए मेरा गुरु हो गया जैसे. After a long pause, I asked Meena how long it had taken her to change. सुधाजी पूछते हैं कि अच्छा ठीक है, तो आपका इतना पेसिमिस्ट एटीट्यूड था, आपको पूरा बदलने के लिए कितना समय लगा? समय तो लगेगा ना, क्योंकि पर्सनालिटी जैसे एक बार तैयार होती है उसको चेंज करना इतना इजी नहीं होता है. सो यू ऑल आर नाउ इन द मेकिंग. So try to give yourself only the best so that there will be no time past again rectifying. अच्छी चीज़ें, अच्छे हैबिट्स अभी से डालना है तो वो निकालने के लिए ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है. So मीना जी क्या बोलती है? Once this realization dawned, she said, it took me almost 2 years to put the change into effect. मीना जी बता रही है कि जब मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे अभी हैप्पी रहना है, हर एक मोमेंट में मुझे हैप्पीनेस को ढूंढना है, चीज़ों के बारे में, लोगों के बारे में नेगेटिव एटीट्यूड नहीं रखना है, बस खुशी ढूंढना है. मेरे साथ जो भी कोई है उसको भी मुझे खुशी देने की कोशिश करनी है, क्योंकि अगर ये भिखारी और उसकी पोती इतने गरीबी में और इतने ट्रेजिक सिचुएशन में अगर खुश रह सकते हैं तो मुझे कितना खुश रहना चाहिए कि मेरे पास तो अच्छा जीवन बिताने के लिए जो कुछ ज़रूरी है वो सब कुछ है. तो ये मेरे नेचर में बदलाव लाने के लिए मुझे कम से कम 2 साल लगे. ये एकदम अचानक से नहीं हो पाया, सुधाजी को बता रहे हैं. इट टुक मी ऑलमोस्ट 2 years to put the change into effect. है ना, हम कुछ सोचते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन एक्शन में जब तक नहीं लाते तब तक कुछ काम का नहीं है. तो वही बता रहे हैं कि मैंने तो सोच लिया, यस ये मेरे भी गुरुजी है, रोल मॉडल है, खुश रहना मैंने इनसे सीखा है, मैं खुश रहूँगी. ये बात मुझे एग्जीक्यूशन में, प्रैक्टिस में लाने के लिए कम से कम 2 साल लगे. नाउ नथिंग मैटर्स, अभी कुछ फर्क नहीं पड़ता है. आई एम ऑलवेज हैप्पी, मैं हमेशा खुश रहती हूँ. आई फाइंड हैप्पीनेस इन एवरी स्मॉल थिंग. मुझे छोटी छोटी बातों में भी खुशी मिलती है. इन एवरी सिचुएशन, हर एक परिस्थिति में मुझे खुशी मिल जाती है. एंड इन एवरी पर्सन, हर एक व्यक्ति से जिससे मैं मिलती हूँ, बात करती हूँ, कुछ समय बिताती हूँ, उससे भी मुझे खुशी ही मिलती है, क्योंकि ये उसका भी माइंडसेट बन गया है. She has selected to be happy. I hope you all also do that selection. Okay, to be happy. Did you give any Guru Dakshina to your Guru? I asked. सुधाजी पूछ रहे हैं, अच्छा तो आपके गुरु को कुछ गुरु दक्षिणा दिया नहीं दी? उन्होंने आपको तो पूरा लाइफ का फिलॉसफी सिखा दिया, इतना अच्छा आपको लेसन दिया जिससे आप सीखने लगे कि खुश कैसे रहते हैं. नो, अनफॉर्चुनेटली बाय द टाइम आई अंडरस्टूड दैट शी वाज डेड. नहीं, मैं उनको कुछ भी नहीं दे पाई जब तक मुझे समझ में आया कि उनकी वजह से मुझ में इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है. मैं उनको कुछ नहीं दे पाई ताकि तब तक वो गुजर गए थे. But I sponsored his granddaughter to a boarding school as a mark of respect to him. लेकिन एक कृतज्ञता की ओर से, ग्रेटिट्यूड की ओर से मैंने उनकी ग्रैंडडॉटर का पूरा शिक्षा जो है वो बोर्डिंग स्कूल के लिए मैंने स्पॉन्सर कर दिया. I sponsored his granddaughter to a boarding school as a mark of respect to him. उनके प्रति मेरा सम्मान जताने के लिए मैंने उनकी पोती का पूरा शिक्षा का खर्चा उठाया, उसको एक अच्छे बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करवा दिया और उसका पूरा खर्चा मैंने उठाया. दिस इज ड्यू टू द रिस्पेक्ट of this grand lesson of life